has already served almost 6 months as Army Chief. He retired in November. Would you give him another extension for reasons of continuity, or would you look to bring in a new I don't think he will ask any further extension, or he will be interested in further extension. And I'll go by the book. I'll go by the merit. Whosoever the senior most will have to occupy this job. So the senior most person will be the next Army Chief? Yes, the next one. The next in line. اس پروگرام بہت بہت ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. ابھی جو کلپ آپ نواز شریف صاحب کی سن رہے تھے، یہ لے کر پچھلے 3-4 دن جب سے جنرل راحیل شریف کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے، موضوع بحث بنی ہوئی ہے. یہ تو ہمارا ایشو نہیں ہے، لیکن ایشو اس لیے بن گیا کہ بیسکلی نواز شریف صاحب نے اسے کچھ کہہ دیا، اور نواز شریف صاحب نے یہ اس لیے کہا کہ سینئر موسٹ کو آرمی چیف ہونا چاہیے. پاکستان کی پرسیپشن یہ ہے بیسکلی کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ ضیاء صاحب کے معاملے میں، مشرف صاحب کے معاملے میں وہ دیکھا یہ گیا کہ جی پرسنل لائلٹی جو ہے وہ کیا ہوگی پرائم منسٹر کی، اور پرائم منسٹر نے اس چیز کو بہت بڑا میرٹ دیتے ہوئے سینئر لوگوں کو فارغ کیا اور نیچے سے لوگوں کو، جونیئر لوگوں کو اپ گریڈ کر کے لگا دیا. یہی معاملہ ان کے معاملے میں تھا ضیاء صاحب کی طرف، اور یہی معاملہ تھا مشرف صاحب کے موقع پہ. تو نواز شریف صاحب نے اس انٹرویو کے ذریعے خود پیغام دے دیا ایکچولی کہ جی میرٹ جو ہوگا، جو سینئر موسٹ ہوگا، اس میں میرا تو میں کوئی دخل نہیں دوں گا. تو جب میں کوئی دخل نہیں دوں گا تو کوئی یہ کہہ نہیں سکے گا کہ میرا پرائم منسٹر یا تیرا پرائم منسٹر یا سلیکشن. یہ سلیکشن ہی نہیں ہو رہی. جب وہی میرٹ پہ رہا ہے، سلیکشن آلریڈی آرمی کی طرف سے آئی ہوئی ہے سینئر موسٹ، تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن کیونکہ ایسا نہیں ہوا تو پھر آپ لوگوں نے اس کو الٹا پرسیپشن لے لیا. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو باتیں ہو رہی ہیں، اب تو خیر آرمی چیف بن چکے ہیں، اور تھرڈ پوزیشن پہ بھی جو آرمی جنرل ہو وہ سینئر موسٹ ہوتا ہے اور کوالیفائڈ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ ساری کنفیوژن بیسکلی نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ اور انٹرویو کی وجہ سے ہوئی. آئی تھنک اس لیے انہوں نے پاکستان میں ابھی تک انٹرویو کسی کو نہیں دیا بینگ پرائم منسٹر. یہ تو ایک لیٹر نوٹ پہ تھا، لیکن انڈیا کو بہرحال دیا، اور اس میں انہوں نے یہ بات کی انڈین چینل کو دیتے ہوئے. ہم جانتے ہیں پاکستان کی تاریخ کو. آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. یہ کوئی اچھا واقعہ لیکن ایک ریئلٹی مبنی واقعہ. مشرف صاحب نے جب وردی اتارنی تھی تو اپنے کلوز لوگوں سے وہ پوچھ رہے تھے کہ جی وردی اتارو نہ اتارو. تو لاہور کے جو ایک سینئر ترین جرنیل تھے، انہوں نے ان کو جب ان سے پوچھا مشرف صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ سر آپ وردی اتارنے جا رہے ہیں، کانسیکوینسز دیکھ لیجیے گا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وردی جب آپ اتاریں گے پاور ختم، ونس اٹس فنشڈ. اس کے بعد اپنے بیٹے بلال کو بھی لگائیں گے نا اگر آپ آرمی چیف. 1 مہینہ 2 مہینہ تیسرے مہینے وہ بھی کہے گا سر وہ راول پنڈی کا کور کمانڈر نہیں مانتا، تو آپ جو ہے وہ گھر ہی جائیں ایز اے پریزیڈنٹ. تو پاور جو ہے وہ آبویسلی اس کے اپنے خد و خال ہوتے ہیں، اور پاکستان میں وہ پاور اپنا ایک ٹرن لیتی ہے. امید رکھتے ہیں کہ یہ مشرف صاحب والی جو مثال میں نے دی ہے یہ دہرائی نہیں جائے گی، اور آرمی جو ہے وہ آبویسلی وہی رول نبھائے گی پچھلے 6 سال میں کیانی صاحب کی قیادت میں نبھایا. اس میں ڈیموکریسی میں انٹرفیئر کیا یا نہیں کیا یہ ایک ڈفرنٹ ڈیبیٹ ہے، لیکن البتہ ڈیموکریسی کو سیبوٹیج نہیں کیا، تلپٹ نہیں کیا. میرے آج کے گیسٹ سے بھی میرے یہ سوالات ہوں گے. آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک نئے دور کا آغاز ہے آرمی چیف کے حوالے سے. کیا آرمی چیف فارن پالیسی پر اثر انداز ہوں گے یا نہیں، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. کیا آرمی چیف پاکستان کے سیاست کے حوالے سے طاقتور ترین انسان ہوں گے یا سویلین کے تائب ہوں گے. یہ 2 اہم ترین سوال ہیں. عمران خان کی پریس کانفرنس بھی ہے. پہلے تعارف کرا دوں میں آج کے پینلسٹ کا آپ سے. میاں جاوید لطیف صاحب ایم این اے ہیں نون لیگ کے، آپ بڑے اتابلے ہو رہے ہیں، اس پہ کمنٹ کرنے کو میں ٹائم دوں گا آپ کو، آپ ضرور کیجیے گا. روف کلاسرا صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں بہت سینئر جرنلسٹ ہے، انویسٹیگیشن سے آپ کا کی کلاس سے آپ کا تعلق ہے، دنیا اخبار سے آپ وابستہ ہے. بہت بہت ویلکم، آپ ان کی تہذیب سنتے ہیں. ہارون رشید صاحب نے ہمیں جوائن کریں گے، اور شوکت یوسف زئی صوبائی وزیر خیر پختونخوا پی ٹی آئی کے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. ہم کوشش کریں گے ظفر لالی صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو میں لیں. کچھ آپ نے اس پہ کہنا ہے جو میں نے ابھی جتنا کچھ کہا، ورنہ میں آگے جاؤں پھر؟ نہیں میں اکٹھا ہی کہوں گا. اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتے آپ؟ اچھا یہ بتا دیجئے کہ یہ غلط کام ہے، یہ ایسا پرسیپشن نواز شریف صاحب کے انٹرویو سے آیا، اور اس کے بعد جب ایسا نہیں ہوا تو اب لوگوں نے پھر باتیں بنانی شروع کر دی. نہیں کامران، 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو ابھی آپ نے کہا کہ شاید کسی جونیئر کو لگا دیا، یہ 3 کا پینل میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا وہ سینئر موسٹ ہی ہیں، لیکن ان کے انٹرویو سے پرسیپشن ابھری کہ سلیکشن تو پھر سلیکشن ہی ہوتی ہے نا سر. نہیں سلیکشن دیکھا نا، 3 کا پینل آیا تھا تو تینوں سینئر تھے. تینوں میں سے 2 سلیکشن میں کروں گا، نہیں سینئر موسٹ کو لگا دوں گا. تینوں میں سے 2 جو ہیں وہ لگ گئے، اور ایک نے فارغ ہونا تھا. یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور دوسرا جو ابھی آپ نے انٹرو میں بات کی ہے نا، میں کیوں بار بار اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہاں کے جو چیف آف آرمی سٹاف بنے ہیں اس کے حوالے سے فارن پالیسی پہ یا داخلہ پالیسی کیسے بنے گی، کیونکہ حکومت تو چینج ہوئی نہیں ہے. کوئی امریکن کی حکومت تو چینج ہوئی نہیں ہے کہ پالیسی چینج ہو جائے. ٹھیک ہے، ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 65 سالوں میں ہوتا یہی آیا ہے
کہ اگر کوئی درمیان میں کوئی جمہوری سیٹ اپ آیا بھی ہے تو فارن پالیسی یا داخلہ پالیسی جو ہے وہ ایک دفاعی ادارہ جو ہے اس پر زیادہ اثر انداز رہا ہے، جس کی وجہ سے آج باتیں بھی ہو رہی ہیں یا امید دیکھیں آج فارن پالیسی تو چیف آف آرمی اسٹاف نہیں ہوں گے اب. نہیں دیکھیں پچھلی جو حکومتیں رہی ہیں یا خاص طور پر جو ان سے پہلے جو ان کے پیشوا تھے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ویژن بالکل کلیئر تھا. ان کی سوچ کی بات نہیں ہو رہی، بات اثر انداز ہونے کی ہو رہی ہے. نہیں اثر انداز بہت سی جگہوں پہ اچھا وہ کیوں اثر انداز بل پہ ہوئے، وہ گیٹ کے اوپر وہ اس لیے اثر انداز ہوئے کہ پرویز مشرف نے جب NRO کیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ تو اس وقت یہ ISI کے سربراہ تھے اور یہ ان کا بھی ایک رول تھا، ایک کردار تھا، لہٰذا یہ سیاست میں تھوڑا بہت اسٹرینتھن کر رہے ہیں نا کہ آرمی جو ہے وہ یہ حقیقت ہے، وہ داخلی سیاست میں اثر انداز ہوتی رہی ہے. تو یہ آرمی چیز سے آپ اس پہ کریں کہ نہیں ہوں گے کامران؟ یہ اسی لیے آپ پروگرام یہ کر رہے ہیں اور اس میں یہ موضوع بحث بنا ہوا ہے، وجہ یہی ہے. اور ان کے جو پیشوا تھے اب کا بتایا نا یہ تو نہیں ہوں گے، آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ آج کے جو حالات ہیں اور یہ ایک پروفیشنل ہیں، سولجر ہیں، یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا. روف کلاسٹر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی کامران سر یہ سوال اٹھانا جو ہے حق بجانے پہ ہم کہ نہیں کہ جنرل جو راحیل ہے ان کے متعلق اب اسیس کیا ہوگا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے کہ یہ فارن پالیسی میں ملک کی داخلی سیاست میں اس طرح اثر انداز ہو گئے یعنی جس طرح کہ ان کے پیش رو ہوا کرتے تھے. آپ اور میں جانتے ہیں کیرو لیگر بل کا معاملہ، میمو گیٹ سکینڈل کا معاملہ، جس طرح آرمی چیف انٹرفیئر کیا، ایون ایک اچھی چیز میں بھی انٹرفیئرنس کی انہوں نے مبینہ طور پہ عدلیہ کی بحالی کے اندر. یا آپ سمجھتے ہیں کہ سارے مفروضے اور آرمی چیف کیانی جو تھے وہ انہوں نے صرف پیچھے رہ کے اسٹرینتھن کیا ہے ڈیموکریسی کو؟ خیر کیانی صاحب نے میں نہیں سمجھتا، اب ہمارا میڈیا کی اپنی ایک رائے ہے، ہر بندہ اپنی رائے کا انٹائٹل ہے. میں کل سے میں یہ بہت سارے پروگرام بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں اور جس میں جنرل کیانی صاحب کو بہت بڑا ٹریبیوٹ پیش کیا گیا. انہوں نے آف کورس کچھ اچھے کام کیے ہوں گے تو لیکن یہ بھی مان لینا چاہیے میرا خیال جتنا جنرل کیانی صاحب کے دور میں پاکستان کی یا ریٹ جو ہے اور پرٹیکولرلی میں کہوں گا طالبان کو ڈیل کرنے کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے یہ ویک ہوئی ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ پاکستانی ہسٹری میں اس طریقے کا پہلے کوئی آپ کو سچویشن نظر آتی ہو کہ وہ 3 سال DGIS رہے ہیں، 6 سال وہ آرمی چیف رہے ہیں، اس کے بعد بھی آج پوری ریاست پاکستان اور پورے 18 کروڑ لوگ اور پوری پولیٹیکل پارٹیز اور پوری پارلیمنٹ آج طالبان کے پیروں میں پڑی ہوئی کہ ہمیں معاف کر دیں. تو 9 سال کے بعد میرا خیال لیگیسی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ایٹ لیسٹ وہ آج ایک سیکیور، ایک سیف اور ایک زیادہ مضبوط ایک میرا خیال ہے پاکستان انہیں دینا چاہیے تھا جہاں پہ سیاستدانوں کی اپنی غلطیاں ہیں، کرپشن ہے، اس میں ان کے میگا سکینڈلز ہیں، ان کی اور داخلی سیاست میں جو اثر انداز ہوئے یا نہیں ہوئے آپ کے خیال میں کیانی صاحب پاکستان ہوئے ہیں؟ بالکل ہوئے ہیں. مثلا آپ اسے دیکھ لیں کیسے نہیں ہوئے. ایک سٹنگ وزیر اعظم تھے اس وقت، ان کے خلاف چارج شیٹ تھی، آپ کو یاد ہوگا میمو سکینڈل کیا تھا، DGIS نے اور جنرل کیانی نے جا کے اپنی حکومت کے خلاف انہوں نے بیانات اس میں داخل کروائے تھے، انفلوئنس کیا تھا انہوں نے، ہمیشہ کرتے رہے. اچھا بہت سارے لوگ ان کو کہتے ہیں جی وہ چاہتے تو وہ ٹیک اوور کر سکتے تھے. تو آئی آلویز ونڈر جن کا اپنا GHQ وہاں پہ یہ طالبان کے قبضے میں رہا ہے 4 دن، تو وہ ان کے پاس کیا مارل گراؤنڈ تھی، وہ جاتے اور وہ پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لیتے، PTV پہ چڑھ جاتے. یا جن کو یہاں پہ ہم نے OBL آپریشن ہوا ہے، سلالہ کا ہم نے دیکھا ہے، اس کے بعد ہم نے اور بہت سارے یہاں پہ فیلیئرز دیکھے ہیں. تو وہ کیسے یہ ہمارا میڈیا پورٹریٹ روف صاحب ایک بات بتائیں، روف صاحب ایک بات بتائیے، اپنا گھر آن فائر تھا. جی یہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ تو پھر میرا آپ سے سوال یہی ہے جو آج کے پروگرام کا بھی سوال ہے کہ جو جنرل راحیل شریف صاحب ہے بیسیکلی ان سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے بینگ تجزیہ نگار پاکستان کی ٹاپ موسٹ، آپ نے دنیا دیکھی ہے، پاکستانی سیاست دیکھا ہے کہ یہ اس طرح ہی کیانی صاحب کی طرح پاکستان کی فارن پالیسی میں پہ اثر انداز ہوں گے، پاکستان کی داخلی سیاست میں ہوں گے یا نہیں؟ کیونکہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے بڑا سوچ کے ان کو بنایا تو نہیں ہوں گے. 2-3 بڑے میرا خیال ہے اس میں امپورٹنٹ چیزیں. ایک تو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے کیا یہ گڈ گورننس کی طرف جائے گی، کرپشن کے سکینڈل نہیں آئے گے، برادریزم اپنے کلائن کی بنیاد پر اپائنٹمنٹ سے نہیں ہوگی، کشمیری ایک اوریجن کو بنیاد بنا کے آپ کو عہدے نہیں دیے جائیں گے. اگر یہ کام نہیں ہوں گے تو میرا خیال ہے پولیٹیکل حکومت آزادانہ فیصلے کر سکے گی. ایک جو ان پہ دباؤ آئے گا میں سمجھتا ہوں جنرل یہ راحیل شریف صاحب پہ، وہ جو نواز شریف صاحب نے بہت سٹیٹڈ پالیسی دی ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، جو ذاتی طور پر میں ان کے حق میں ہوں جو نواز شریف صاحب نے بیان دیا ہے کہ آپ کو اب انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ اس حد تک جانے چاہیے، ایون ویزا ریسٹرکشن بھی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں آپ کو کرنے چاہیے. اس میں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا GHQ کیا رسپونڈ کرتا ہے، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہم نے ماضی میں وہاں جب فوج آ کے ڈائریکٹ رول کرتی ہے پاکستان پہ تو بھارت کے ساتھ ہمیشہ CBM بھی ہوتی ہیں، اچھے ریلیشن شپ بھی ہوتے ہیں، آگرہ بھی جاتے ہیں، وہاں پہ بنگلور میچ دیکھنے بھی جاتے ہیں. لیکن جو ہی پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں ہمارے GHQ کی طرف سے
ठीक है। रिजर्वेशन भी दी जाती हैं और प्राइम मिनिस्टर को रोक time is दिया the जाता है। best इससे judge शरीफ जो according हैं, to you, एक ठीक है। लास्टली एक लास्टली इनके लिए जो बड़ा चैलेंज है, तालिबान होंगे, वो अमेरिका होगा, अफगानिस्तान से ज्यादा मैं समझता हूँ जनरल शरीफ से जो नवाज शरीफ साहब आके एक्सपेक्ट करते होंगे और ठीक एक्सपेक्ट करते होंगे कि GHQ को नवाज शरीफ को पाक इंडिया रिलेशनशिप पे सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है। क्या वो सपोर्ट वो Right. दे सकते ये हैं point आपका आ नवाज गया। शरीफ साहब को? दैट वुड बी अ ठीक है। बिग क्वेश्चन। हारून रशीद साहब, मेरे सवाल के दो हिस्से, पहला हिस्सा तो यही है कि आप एग्री करते हैं रऊफ क्लासरा साहब की इस बात से कि जनरल कियानी जो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान की रीढ़ कमजोर हुई है, तालिबान के पैरों में पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिरी हुई है और हम खुद अपने GHQ का तहफ्फुज नहीं कर सके, तो कियानी साहब इस पोजीशन में नहीं थे कि वो जमहूरियत को तलपट करते, तो क्रेडिट क्यों उनको दिया जाए? और इसके अलावा पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस की बेजा उन्होंने। एग्री करते हैं क्लासरा साहब से? पहले तो ये सवाल है, फिर अगला सवाल करूंगा आपसे हारून साहब। और क्लासरा साहब तो बादशाह आदमी है, अजीबो गरीब गुफ्तगू ये कर रहे हैं। आज पता नहीं इनको क्या हुआ है। गुजारे ये है, देखना ये होता है कि क्या सिचुएशन आपको मिली थी और उसमें क्या परफॉर्म आपने किया। जी। हुकूमत अगर कदमों में गिरी हुई है तो खुद गिरी हुई है। जनरल कियानी इन्होंने गिरने का मशवरा नहीं दिया। जनरल कियानी इन्होंने हमेशा मजबूत स्टैंड लेने का, नेशनल कंसेंसस बिल्ड करने का, कौमी इत्तफाक राय कायम करने का मशवरा दिया। ये जो क्राइसिस पैदा हुआ है अफगानिस्तान के हवाले से, फिर कबायली इलाकों में, जनरल कियानी ने तो पैदा नहीं किया और लोगों ने पैदा किया। और ये मुदाखलत भी अजीबो गरीब बात है। अब ये कह के जनरल कियानी की मजम्मत करना कि वो लोग कहते हैं कि अगर वो चाहते तो कब्जा कर लेते और ऐसा कर लेते। उन्होंने तो कभी ये नहीं चाहा। उन्होंने तो हमेशा ये चाहा कि सिविल वाले ज्यादा वो जिम्मेदारी लें। और देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस कमजोर हैं। खुद क्लासरा साहब कह रहे हैं कि भाई ये क्लाइन की बुनियाद पे ओहदे दिए जाते हैं, करप्शन बेपनाह है, खलाक कभी बाकी नहीं रहता। ये पॉलिटिकल साइंस का उसूल है। और जो असरअंदाज होने की बात है, एक तो असरअंदाज होना यह है कि प्रेशर डाला जाए गैर मामूली। मेमू गेट में भी और दूसरे जिस वाक़े का हवाला दिया वो अदालत में उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब सुप्रीम कोर्ट एक मौक़िफ़ तलब करे और वो अपना मौक़िफ़ भी न दें तो ये तो अजीब बात है। और दूसरी बात यह है कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो सारी दुनिया में इनपुट देती है, CIA भी देती है, पेंटागन भी देती है, वो तो रहेगा। और वो इंस्टीट्यूशनल है, वो इंडिविजुअल की राय नहीं होती। मतलब पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात पे फौज की राय बिल्कुल वाज़ेह है कि ये मरहला बेहतरी होनी चाहिए लेकिन मरहलावार होनी चाहिए। इस तरह अफगानिस्तान में भी तरीके कार के मुताबिक मारूफ मालूम सफारती शाइस्ता सफारती ज़राए के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। अब अगर किसी का दिल चाहता है कि जनरल कियानी की इस वक्त मजम्मत करे जब वो चले गए तो वो शौक अपना। अच्छा हारून साहब, मेरे सवाल का अगला हिस्सा, इस पे तो आपको रोक साहब करना चाहिए, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन मेरे सवाल का अगला हिस्सा हारून रशीद साहब से यही होगा कि रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर वॉज द पास्ट, अब जो जनरल राहील शरीफ साहब आए हैं पावर में, तो ट्रेडिशनली हमने देखा है कि ऑब्वियसली आर्मी जो है उसका फॉरेन पॉलिसी में एक से होता है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात में एक से होता है, इंडिया के साथ फॉरेन पॉलिसी में एक से होता है, उसकी अनडिनाइबल है। उनके अपने भी इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उस हिसाब से वो देखते हैं चीजों को पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में। आपकी क्या असेसमेंट है कि अब नवाज शरीफ साहब ने इतना बगौर सोच समझ कर ये फैसला जो किया है जनरल राहील शरीफ साहब का, तो ऑब्वियसली उन्होंने ये सोच के किया होगा ना कि फॉरेन पॉलिसी में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आजाद हो, आर्मी का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, उसमें इंटरनल मामलात में टाइम्स मैगजीन नवाज शरीफ साहब को तो स्ट्रांग कहे प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ को ना कहे, जैसा कियानी साहब को कहा करते थे। तो अब आपका अपनी असेसमेंट क्या है कि नए भाई जनरल कियानी के दौर में भी नवाज शरीफ साहब आजाद थे, उन्होंने क्या मसला पैदा किया नवाज शरीफ के लिए? तो टाइमिंग था ना, दौर में भी आजाद थे, उनके पास टाइमिंग था, ये आजाद थे बिल्कुल, कोई प्रेशर नहीं था नवाज शरीफ साहब पे। उनके पास गया, उन्हें ब्रीफ किया, उन्हें राय दी। मुज़ाकरात का फैसला नवाज शरीफ साहब ने किया सियासतदानों की मदद से, उन्होंने उसे सपोर्ट किया, उसमें कोई रुकावट तो नहीं डाली। और मेरा ये ख्याल है कि जनरल राहील जिस मिजाज के आदमी हैं, पैरामीटर्स के वो आदमी हैं, ज़ाब्ते के आदमी हैं, तो ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। वैसे भी उनमें एक कॉमन चीज है जनरल कियानी के साथ कि वो शख्सी तसादुम से गुरेज करने वाले आदमी हैं, शाइस्ता आदमी है, जाती ताल्लुकात भी दोनों खानदानों के अच्छे हैं, लकीली। ये प्लस पॉइंट है, ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो जनरल राहील के बारे में फौज में जितने भी लोगों से हमने पूछा है, उनके सीनियर से पूछा है, साथियों से पूछा है, इर्द गिर्द के लोगों से, अच्छी राय रखते हैं और हुस्न अखलाक है उनके अंदर। और मेरा ख्याल है कि मामलात अच्छे चलेंगे इंशाअल्लाह। और यही प्रोसेस होता है, ग्रेजुअली सिविल को, हुकूमत को ज्यादा मजबूत होना चाहिए, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। सर ठीक है, मैं जाऊंगा शौकत साहब, लेकिन उससे पहले रोक क्लास वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग और नॉट? मैं जाऊंगा आगे, वरना शौकत नहीं, हरून साहब का मेरा ये जो इस तरह का ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है,
ये कोई आज पहली दफा टीवी पे नहीं आ रहा। हारून साहब को पता है, हम घर पे, मेरे घर पे बैठ के, इनके घर पे बैठ के, दफ्तर में बैठ के कई दफा हमारी इस पे हीटेड डिबेट हुई। उनका जनरल कियानी साहब के बारे में अपना एक व्यू है, एक अच्छा तस्वर रखते हैं, मेरा उस तरीके, उनकी जात के हवाले से ऑफ कोर्स जनरल ये कियानी साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, अच्छे बंदे होंगे। मेरा प्रोफेशनल हवालों से एतराजात है बड़ा जेन्युइन से। शेर शाह सूरी को यहाँ पे 4 साल मिले थे, उन्होंने यहाँ मुगलों को भगाया ना, हिंदुस्तान से भगाया, 4 साल हुकूमत की और बड़े आला पैमाने पे की, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें, जीटी रोड बनाया, आज तक उनकी रिफॉर्म्स हैं। अल्लाह से डरो, जनरल कियानी को हुकूमत नहीं मिली थी। अल्लाह से डरो, जनरल कियानी को हुकूमत नहीं मिली, उन्हें फौज मिली। हारून साहब मेरी बात को उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया। सर ये वो सर किया होगा, हम देख रहे हैं जितनी इंप्रूव हुई है कि ये 6 साल बाद आज पाकिस्तान पूरा तालिबान के पैरों में पड़ा हुआ है, वो हम देख चुके हैं चीजें किस तरह उनके हाथ में हुकूमत तो नहीं थी ना, हुकूमत तो थी आपके दोस्त जनाब यूसुफ रजा गिलानी के हाथ में और परवेज अशरफ मुद्दतुल्लाह वलाली के हाथ में। नहीं दे सकता हारून साहब, और अब मेरी गुस्ताखी तो नहीं है कि मैं भी ये ताना दे सकूं सर। हारून साहब मेरे तो ये गुस्ताखी नहीं कर सकता, की बात नहीं है, आपको भी दे सकूंगा। कोई आपकी ऑनेस्टी डाउट नहीं करता, लेकिन आपके दोस्त तो थे वो, सर मैं आपकी दयानत पे तो कोई शुबह नहीं। चले अब बात कामरान, आप किसी और से सवाल पूछ रहे हैं, हारून साहब मुझे जवाब नहीं देने जा रहे, पूछने मेरा ख्याल है काफी। अब मैं हारून साहब से मेरा जाती ताल्लुक है, मैं ये टीवी चैनल पे बैठ गए उन जाती ताल्लुकात में बात नहीं कर रहे हैं, हम मामला में बात कर रहे हैं। ठीक है कामरान, उनका मेरा बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अब आपका मेरा डिफरेंट व्यू है। मैं ये समझता हूँ हमारी रेट, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी फोर्सेज इस अरसे में उन्हें जो अपना रोल प्ले करना चाहिए था, और बड़े ब्रेव हैं, इन्होंने शहादतें दी हैं, इन्होंने सफर किया है, लेकिन एक हम स्टैंड लेने में नाकाम रहे। हो सकता है नवाज शरीफ साहब अब मुज़ाकरात कर रहे हूं, लेकिन पिछले साल या 5 साल आपने देखा है आसिफ जरदारी साहब, गिलानी साहब लेटे रहे हैं फौज के आगे, जो कुछ कहा गया बल्कि जो नहीं भी कहा गया इन्होंने भी हैंड ओवर किया था। उन 5 साल 6 साल में मेरा ख्याल है कियानी साहब को आज क्रश करके जाना चाहिए था तालिबान को, कि ये सिचुएशन ही पैदा ना होती। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, अफगानिस्तान पे क्या कर, ये मैटर वो अपने दौर में सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स माय व्यू। एक जुमला कहने की मुझे इजाजत दें जनाब, कह दीजिए फिर मेरे जा रहा आगे। ये जंग कौमी इत्तफाक राय से लड़ी जा सकती है, तना फौज। ठीक है सर, ठीक है, ये बात आ गई। शौकत यूसुफ जई साहब, सॉरी आपके पास थोड़ा लेट आया हूं मैं। पहले तो बुनियादी सवाल है, ऑब्वियसली आप हुकूमत में है, सूबाई हुकूमत में, और आपकी जो पार्टी है वो वफाक में अपोजिशन में है। कंसर्न तो आपका भी है। अब जो जनरल राहिल शरीफ साहब आए हैं और आप एक वॉर फ्रंट लाइन स्टेट लड़ रहे हैं, आप खैर पख्तूनख्वा में, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप जनरल साहब से कि क्या करें वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से? तो आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं करते ना कि वो सजेस्ट करेंगे वो रोल जो इससे पहले उनके पेशरो निभाते रहे, फॉरेन पॉलिसी से लेकर दाखिली मामला तक? व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ द आर्मी चीफ that he should do what and what not? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात यह कि देखिए, ये आपने बिल्कुल कहा कि फ्रंट लाइन सूबा है ये, और यहाँ पे कुछ ज्यादा जिम्मेदारियां आती हैं, और जिस दलदल में हम फंसे हुए हैं, जिस दलदल में ये सूबा फंसा हुआ, उसमें बहुत ज्यादा हिकमत अमली की जरूरत है। उसमें हमें बहुत ज्यादा एक कौम बनने की जरूरत है, जो इस वक्त मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं टीवी टॉक शो देखता हूँ या खुद इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, अपने शुरका की गुफ्तगू सुनता हूँ, तो बड़ी कलाबाजियां मुझे नजर आती हैं। क्योंकि कोई नेशनल इंटरेस्ट जो किसी बात कहा जाता था, फिर बाद में वो भी मतनाज़ा हो गया कि जी नेशनल इंटरेस्ट क्या है, तो उस तरफ कोई गुफ्तगू नहीं होती है। और जब हम टॉक शो खत्म होता है तो उसमें पता ही नहीं चलता है कि जी हमने क्या कहा और क्या होना चाहिए था। अब इशू ये है कि देखें, इतना बड़ा इशू यहाँ पे चल रहा है, ड्रोन हमले हो रहे हैं, और पूरी कौम जो है वो चाहती है कि ड्रोन हमले बंद हो जाए पूरी, और जो हुकूमत में बैठे लोग हैं वो भी उसकी मजम्मत करते हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि जी इसको रोकेगा कौन, ये क्यों हो रहे हैं, किसके इशारे पे हो रहे हैं? आज अगर आप अखबारों में पढ़ लें और अमरीकी नुमाइंदगान की खबरें आप पढ़ें, तो वो क्लियर कट उनकी तरफ से, अमरीकी हुकाम की तरफ से, कि जी पॉलिसी वही है, हमने कोई चेंज तो नहीं की है। और वही जो ड्रोन हमलों के हवाले से, जो नेटो सप्लाई के हवाले से जो फैसले हुए हैं माजी की हुकूमत ने किए, वो अभी जारी है जी। तो यही सवाल पैदा होता है कि इसमें देखिए, अगर हम फौज से तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फौज से ज्यादा हुकूमत का मसला आता है। आप देखें कि अब मैं गुफ्तगू सुन रहा था कि जी जनरल कियानी ने किया क्या और आपसे क्या होगा, लेकिन होना ये चाहिए कि जब कौम ने वोट देना, ये मुल्क जमहूरियत के नाम पे। लेकिन शौकत साहब ये बताइए ना, आप ये तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आर्मी चीफ जो है वो फॉरेन पॉलिसी और दाखिली पॉलिटिक्स में जो है वो असरअंदाज होंगे या नहीं होंगे? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? ब्रीफली बताइए, मैं फिर ब्रेक पे जाना है, कि होना चाहिए उनको मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में या नहीं? देखिए,
देखिए पाकिस्तानी फौज का जो अब तक रिकॉर्ड रहा है वो तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उनका तो अमल दखल रहा है, लेकिन होना नहीं चाहिए। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर वोट के जरिए ये आपका पॉइंट था, चेंज हो रही है, ये आपका पॉइंट आ गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने जानना था कि तहरीक इंसाफ क्या सोचती है इस बारे में। व्यूज ब्रेक में जाएंगे तो वापस आएंगे तो आपको मैं इमरान खान साहब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाऊंगा और उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा अजीबोगरीब इल्जाम बहुत से लोगों के नजदीक लगा दिया है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अमेरिका से डील करके आए कि ऊपर से ड्रोन की मजम्मत और अंदर से अमेरिका को वेलकम कि आप ड्रोन से पाकिस्तानियों को उड़ाएं। इसके क्या डायनामिक्स है, ये बड़ा एक बहुत संगीन इल्जाम है जो इमरान साहब ने लगाया है नवाज शरीफ साहब के ऊपर और उनकी हुकूमत के ऊपर। वापिस आएंगे, इसमें भी बात करेंगे और चीफ जस्टिस साहब की रुखसती जो है उससे कौन कौन खुश हो सकता है और कौन कौन खुश नहीं, इसमें भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमेरिका ड्रोन गिराता है लेकिन इमरान साहब ने बम शेल गिरा दिया। मैं आपसे जावेद लतीफ साहब आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाइट है, बिलवास्ता तौर पे गद्दारी का इल्जाम लगाया इमरान साहब ने आप पे कि आप लोग अमेरिका से मिले हुए। ये सुनते जी इमरान साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी धुआंधार है। बहुत बड़ा इस मुल्क में गेम हुई है, इंटरनेशनल एजेंडा का यह हिस्सा है। इस गवर्नमेंट को लाने का, जो पिछली गवर्नमेंट को लाने का एक इंटरनेशनल एजेंडा का हिस्सा था कि इस मुल्क के अंदर जो मर्जी करें वो, या हमारे लोगों को कत्ल करें, ड्रोन अटैक करें, ये सिर्फ मुजम्मतें करते रहेंगे। अंदर से मुकमुका हुआ नून लीग का और अमेरिका का, और हमें ऐसे अटैक किया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है। ये तो इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो तो ऐसे लग रहा है कि स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन है। जी मियां साहब, मुकमुका आपका अमेरिका से तो गद्दारी का केस बनता है। मैं कामरान साहब इस जवाब देने से पहले मैं क्लासर साहब ने जो बात की, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, इनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जी, लेकिन मैं किसी की वकालत भी नहीं करूंगा। ये जरूर मैं अर्ज करना चाहता हूं उनकी खिदमत में कि जो उनके पेशरो थे कियानी साहब के, जब वो आए थे और जो उनकी पॉलिसी थी, उन्होंने क्योंकि आइन को तोड़ा, कानून को तोड़ा, मुशर्रफ साहब ने और अपनी हुकूमत को जस्टिफाई करवाने के लिए, पूरी दुनिया में काबिल कबूल करवाने के लिए उन्होंने जो पॉलिसियां ली और जो उन्होंने कुछ कर दिया, वो शायद तोको भी नहीं रखी थी आलमी फोर्सेस साहब उससे वापस लाए, लेकिन उनको विरासत में वो चीजें मिली और उसको वापस लाए जमहूरियत की तरफ। कुछ उन्होंने बेहतर किया उसमें। लेकिन जो बात आज बार बार अभी जो इमरान खान साहब ने किया बात, या इनके जो लोग बातें करते हैं, या भी जो गद्दारी के ऊपर से ड्रोन नीचे से मारी जो ऊपर से ये एक हकीकत है कामरान साहब कि हमने ड्रोन गिराया नहीं, लेकिन हमने उनकी वो जो पॉलिसी थी पिछली हुकूमत की, हम उसका ना हिस्सा बने हैं, ना जो ड्रोन हमले हो रहे हैं ठीक है हमारी उसमें कोई किसी के साथ भी रजामंदी। मैं एक अर्ज कर दूं, सिर्फ मैं वो जवाब देने से पहले ये जरूर अर्ज करूंगा, इराक अफगानिस्तान का हाल देखें, जिन्होंने जोश से होश से काम नहीं लिया, जोश से काम लिया, और आज ईरान जो है वो कितनी न्यूक्लियर डील पे आ गया। लेकिन इमरान साहब ने आप पे इल्जाम लगाया, तो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, मैं सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूं कि मसूफ ये बता दें कि 15 साल तक ये एक मुर्दा घोड़ा था, इसमें किसने जान डाली और किस मकसद के लिए डाली, और खैबर पख्तूनख्वा में फिर हुकूमत किसने इनको दिलाई। अगर मुर्दा घोड़ा से एक मुर्दा घोड़ा था, ठीक है, किसी को 15 साल काउंटर सवाल हो गया, लेकिन मैं समझता हूं कि इस किस्म के ना इल्जामात लगाने चाहिए। ठीक है, आज आज लोग आपसे पूछ रहे, मैं कहूंगा फिर वो जवाब दे दें। हकीकत में मैं आज भी ये कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तानी नहीं है, वो मुहिब्बे वतन नहीं है, या इनके बच्चे जो है वो बाहर पढ़ रहे हैं, ये जो भी इल्जाम लगाते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, आपसे आज लोग पूछ रहे होंगे क्या एविडेंस है आपके पास कि आपने नवाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत को बिला वास्ता इनडायरेक्टली गद्दारी कह दिया कि अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी की, इलेक्शन में इनको जितवाया इस शर्त पे कि जी फॉरेन पॉलिसी वही रहेगी मुशर्रफ साहब वाली, जरदारी साहब वाली, ड्रोन मारते रहेंगे लोगों को, नवाज शरीफ साहब झूठी ही मुजम्मतें करते रहेंगे। ये एविडेंस क्या आपके पास इस इल्जाम का? बड़े संगीन इल्जाम है गद्दारी के। देखिए मैंने आपसे पहले ये अर्ज किया कि ये आज मीडिया में ये चीजें सारी आ चुकी हैं कि अमेरिकी डिपार्टमेंट जो है वो ये कह रहे हैं कि पॉलिसी में शिफ्ट नहीं आई है। वही जो हमारे साथ जो मायदे हुए हैं, जो हमारे साथ वादे हुए हैं,
इस हुकूमत से साथ भी वही चीजें चल रही है। और आपने देखा है मीडिया में आजकल, मैं आपसे वो नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से कोई बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे फिर शक तो पैदा हो जाता है ना कि अगर आप जवाब भी नहीं दे रहे हैं उसका, आप डिनाई करें कि हमने कोई ऐसा मायदा नहीं किया, आप आए उसके जवाब दें, इनसे ये पूछें कि क्या कहें हम, ड्रोन गिरा दें। ये मुआहिदा जो है आपसे हुआ क्या कहें, मतलब नहीं है। स्टेट ये कोई मामूली बात नहीं है कि आपके हुकूमतें जो हैं वो स्टेट के बहाव पर करती हैं। शौकत साहब की बात सुन लें जरा। जी शौकत साहब, देखें, ये देखें, ये कोई मामूली वाकया नहीं है कि हंगू जैसे सटल एरिया में फिर गुज़िश्ता 10 सालों में हम देखें तो ये मैदानी जंग बना हुआ है, फाटा, और बेगुनाह लोग मर रहे हैं। आज आप देखें कि अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हुआ है, उसमें एक बच्चा मरा है और उन्होंने माफी मांग ली अफगान सदर से। ये तो सारे चैनल पे चला, आपने देखा। लेकिन शौकत साहब एक बात बताइए, शौकत साहब एक बात बताइए, आप ड्रोन गिराने के बाद अमेरिका जंग तो वो ले नहीं सकते, नंबर 1। यानी एफआईआर की पोजीशन ये कि एफआईआर जो आपने अगर कटवाई है तो उसमें वो तो अफगान नेशनल्स निकले, तो जब आप यूएन में भी जाएंगे एफआईआर लेके तो वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आप जो मदई पार्टी है वो तो इसमें है ही नहीं स्टेक होल्डर। पाकिस्तान के तो वो लोग ही नहीं थे जो पिछले जो हंगू का जो आप कह रहे हैं जिसमें मारे गए। तो कहने का मतलब ये कि आप लोग खुद भी थोड़ा आप पे इल्जाम जो लग रहा है एग्जैजरेट नहीं कर रहे, पॉलिटिक्स नहीं हो रही इसके ऊपर। एक एफआईआर में सवाल है मेरा, वो नामजद नहीं कर सकते, डेरा इस्माइल खान की जेल को बचा नहीं सकते, एक हुकूमत गिरती हुई साख गिरती हुई को बचाने के लिए इस तरह की पॉइंट्स को किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। शौकत साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए। और मेरी बात सुनो, गिरती गिरती छोड़े हैं, इंशाल्लाह ताला ये 5 साल कायम रहेगी और हमें इसकी परवाह भी नहीं है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब हम इलेक्शन में जा रहे हैं, इससे ज्यादा अक्सरियत हमें परवाह भी नहीं है। देखिए, हमें कोई परवाह नहीं आपकी तरह, हम दिखेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला, हम दिखेंगे नहीं, हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे पाकिस्तानी उस पे जो हम सालमियत की मुख्तारी की बात करते हैं। अपनी गवर्नेंस बताएं, आप इस सूबे में कौन सी गवर्नेंस लेकर आए हैं। मुझे पता है ना, मुझे पता है कि आप लोग किस तरह के आए हैं। आप किस बुनियाद पर आप वफाक को, अच्छा की बात सुन लें, किस बुनियाद पर आप कर रहे हैं। ये सब बात किसी की नहीं समझ आ रही। शौकत साहब जवाब दे दीजिए। जी जी, यही तो इनका प्रॉब्लम है कि जब इनसे नहीं बनती है तो फिर ये शोर जवाब सुन लीजिए। शौकत साहब जवाब कंप्लीट करें, शौकत साहब जवाब कंप्लीट कर ले, फिर मैं देखिए एक तो इन्होंने जो ये कहा ना कि ये 5 महीने में एकदम पता नहीं क्या हो गया। देखो, पाकिस्तानी कौम की तौहीन न करें, पाकिस्तानी कौम और फिर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तौहीन न करें। उन्होंने वोट देके हमें इस यहाँ पे पहुंचाया है और हमें उन्हीं की बात करनी होगी। हम इक्तदार में आके फिर अमरीकी जबान नहीं बोलेंगे। आप एक तरफ कहते हैं कि जो ड्रोन हमले जो है वो सालमियत के खिलाफ है, दूसरी तरफ आप उसी ड्रोन हमले को जो है ना खामोशी से सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए। आपके लोग यही टीवी पे आके कहते हैं कि जी हमें एक कंसेंसस के साथ आना चाहिए, तो किसने रोका है आपको? आए आपकी लीडरशिप दिखाए ना अपनी। कामरान साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिए। वफाक में हुकूमत बने मुस्लिम लीग नून की, तो ये कहते हैं उन्होंने बनवाई, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत बनी, हम तो कबूल करते हैं, हम तो ओन करते हैं। तो जीते भी वहां पे आपको कबूल करना चाहिए, आपको कबूल करना होगा। एक मिनट शौकत साहब, एक मिनट। हारून रशीद साहब, इमरान खान साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको आप क्या कहेंगे? इतना संगीन इल्जाम लगा दिया वफाकी हुकूमत के ऊपर कि अमेरिका के एजेंट है। देखिए, इमरान खान की एक बात तो सही है, ये हुकूमत आई है अमेरिका की मदद से, सऊदी अरब की मदद से, मालदार तबकात की मदद से। ये कह रहे हैं इमरान खान मुर्दा घोड़ा, वो तो कभी मुर्दा घोड़ा नहीं था, वो तो क्रिकेटर था, तब भी नहीं था जब वो शौकत खानम हॉस्पिटल बना रहा था, जब वो निमल यूनिवर्सिटी बना रहा था। नवाज शरीफ क्या चीज था जिसको लीडर बनाया? उसको फौजियों ने लीडर बनाया, एजेंसियों ने बनाया। ये जो तर्ज गुफ्तगू है इसमें नजरसानी करनी चाहिए। काम करता हूं बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। तुम्हें ये क्या बुरी आदत है, तुम किसी को बात नहीं करते। मत बोलो, बीच में मत बोलो, खामोश रहो। जी हारून साहब, खामोश रहो। नहीं, बात ये है कि ये हमें मालूम नहीं है, मैं कह रहा हूँ खामोश रहो। नहीं, ये भी तरीका नहीं, ये क्या तरीका? क्या तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? मुझे सिखाया, ये बात गलत है आपकी। बात करने ये तरीका आपका गलत है। तुम बात कर रहे हो तो हम बीच में बोलते हैं। मैं मुलाजिम नहीं हूँ आपका। इमरान खान साहब का ये जो इल्जाम है, ये तो हमारे पास ना मैं रोक क्लास रहा हूँ कि आप उसको दबा लेंगे। अंडरस्टैंडिंग है और बकवास बंद करो। मैं ये बकवास तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? ये आपको तमीज होनी चाहिए। मैं रोक क्लास नहीं हूँ कि जिसकी आप जिस तरह आप जिसको चाहते हो जिस तरह कर देते हो। अच्छा, आपको पता ही नहीं है, बहुत बड़ा अखबार आपको तरीका नहीं है। पूछता कौन है? कभी किसी खान नवाज शरीफ कहाँ आप
नवाज शरीफ वकालत कर रहे हैं आप। तुम तो कभी आप वकालत करते रहे हैं मुखलासरा नहीं बन सकते। अजीब वकालत करते रहते हो उससे इमरान ज्यादा खान तुम्हारी की। क्या हैसियत है? इमरान खान खामोश कर रहे हैं। ये तरीका नहीं ब्रेक है। में आऊंगा। बच्चे बनो। ब्रेक में आप भी इंसान के बच्चे बनो, ब्रेक में आते हैं। इंसान के बच्चे बनो आप भी। बिया साहब ठंडे हो जाए आप भी और हारून साहब भी। आपका तरीका ही है गलत है। इस प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। रऊफ साहब, मैं आपके पास आऊंगा सीधा। दो बड़े क्विक सवाल है, प्रोग्राम का आखिरी से चल रहा है। मुझे एक तो बताइए, इमरान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सिर्फ हम पॉलिटिकल उसको समझे कि जी एक उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया या कुछ सब्सटेंस है? दूसरा ये कि चीफ जस्टिस साहब भी फारिग हो रहे हैं, 11 तारीख को बड़े बाइजो रिटायरमेंट हो रही है, तो हुकूमत तो बड़ी खुश होगी क्योंकि बकौल हुकूमत की उनका भी नाकता बंद किए रखा है उन्होंने, जो ऑफ द रिकॉर्ड हमारे पास रिपोर्टें। जी रऊफ साहब। जी कामरान, इसमें दो चीजें हैं। जी। एक तो मेरा ख्याल है जो उस पर डिबेट होनी चाहिए, और पाकिस्तानी क्योंकि सोसाइटी झूठ पे चलती है, हम सब झूठ बोलते हैं और लोग भी खुश होते हैं झूठ सुन के। आज तक मैंने कोई प्रोग्राम यहाँ पे नहीं सुना, कोई डिबेट पार्लियामेंट में नहीं सुनी, किसी लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी कि आखिर अमेरिकन पागल हैं कि 1 करोड़ रुपए का एक ड्रोन वो पाकिस्तान पे क्यों फेंक रहे हैं। वो क्या रीजंस हैं जिस वजह से पाकिस्तान पे अटैक हो रहे हैं। कोई पाकिस्तान में इस पे बात करने को तैयार नहीं है। मैंने तो किसी से नहीं सुनी, ना टीवी पे कभी सुनी है, ना मैंने डिबेट सुनी है, ना हमारा कोई लीडर बताता है, और लोग हमारे बेवकूफ बन के खुश होते हैं। पूरा आप दुनिया जहां का जोर लगा के देख रहे हैं, ड्रोन नहीं रुकेंगे। जब अभी ये नवाज शरीफ साहब ये गए थे अमेरिका, और अभी हमने डिस्क्लोज भी किया, मैंने ये न्यूज़पेपर में स्टोरी फाइल की अपने प्रोग्राम, ये खबर ये है, मैं भी ये तफसील से बताया कि इनको बाकायदा ओबामा साहब ने कहा है, उन्होंने कहा सर हिज एक्सीलेंसी वापस जाएं या तो खुद अपना घर ठीक कर लें। आपके यहाँ जो टेररिस्ट ठहरे हुए हैं जिनसे आपकी कभी सुलह हो जाती है, कभी लड़ाई हो जाती है, कभी मार कुटाई होती है, या जो कुछ होता है, आप उनको खुद क्लीन कर लें, उनको रोक लें। अगर नहीं रोक सकते तो हाँ, आप अगर तालिबान को नहीं रोक सकते, अलकायदा को नहीं रोक सकते कि वो अटैक करें उन पे, तो आप फिर हमें भी नहीं रोक सकते। तो पाकिस्तान एक बन चुका है, आप कह सकते साइलेंट स्पेक्टेटर। ये तालिबान और अमेरिकन के दरमियान एक सैंडविच सर, ये इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या समझे फिर हम? इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या समझे फिर हम? मैं जाती तौर पर समझता हूं, हो सकता है फिर इमरान खान साहब के फैन है, फॉलोअर है, वो इस चीज पर नाराज हो जाएं कि इमरान खान साहब को फोकस करना चाहिए, इस बात पर भी जोर उन्हें देना चाहिए कि पाकिस्तान पे अटैक क्यों हो रहे हैं, इनके पास कोई स्ट्रेटेजी है। मसलन आप उस हंगू को देख लें, वहां पे जो मदरसे में अखबार आके ठहरे हुए थे तालिबान, उनके बारे में अमेरिकन को पता चल गया था कि वहां पे ये फलां मदरसे फलां कमरे में वहां पे अमेरिकन मौजूद हैं। अगर नहीं पता चला तो वहां के डीपी और डीसीओ को पता नहीं है, स्पेशल ब्रांच को पता नहीं है, हमारी एजेंसीज को पता नहीं है। तो ये वो मेरा ख्याल इश्यूज हैं, ये वो ठीक है। रऊफ साहब, टाइम बड़ा कम है, ठीक है। शौकत साहब, एजुकेशन वाला मोड है। जी जी, ये आपका पॉइंट आ गया। आप चीजों की बात तो बाद में करेंगे, वक्त की किल्लत है। शौकत साहब, सारी दुनिया को रऊफ साहब आप मेरे साथ ही रहिए। शौकत साहब, सारी दुनिया को पता है सवाए पीटीआई के मुबैना तौर पर कि पाकिस्तान कि अपने अंदर प्रॉब्लम्स हैं, ड्रोन जो है वो पाकिस्तान के अपने मिसाइल का कॉन्सिक्वेंस है, सवाए आप लोगों के सबको पता है। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं तो इसे इनकार नहीं कर रहा हूं कि पाकिस्तान क्या बन चुका है और इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है और कौन कौन सी ताकतें इसके अंदर खेल खेल रही है। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं कि जो 10-12 सालों पिछले जो हमारी हुकूमतों की जो पॉलिसियां रही है, तो वो तो सारी जिम्मेदार तो उसकी वही है ना। जो अब इशू बन चुका है, अब इशू से निकलना कैसे? अब ये तो नहीं हो सकता कि हम सराहने पर रख के हम सो जाएं कि जी अब देखते रहते हैं कि ड्रोन हमले होंगे और हमारे लिए हालात साजगार होंगे और फिर हम जाके उठेंगे अपनी कारोबार करेंगे। इस तरह नहीं हो सकता। देखो, मुल्कों के अंदर अपनी लीडरशिप होती है, बुरहान आते रहते हैं, मुश्किलात आती रहती है, लेकिन लीडर मुश्किलात से निकालते हैं। ये नहीं कि अमेरिका आके हमें निकालेगा। सर, ये भी तो नहीं हो सकता कि अमेरिका को आप डिक्टेट करें। सुपर पावर है, अलायंस में भी है, पैसा भी उनसे ले रहे हैं, ख्वाह वो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमतें हो, यूएस एड हो। फिर ये भी तो नहीं हो सकता सर, अमेरिका को किस तरह कन्विंस करेंगे? वर्ल्ड पावर है जी। देखिए, ये लीडरशिप का काम है कि वो अपने अमेरिका को कन्विंस करे। अब ये कि आप इनकी तरफ से कौन सी कोशिश हुई, आप मुझे बताएं। ठीक है, अभी तरफ क्या कोशिश हुई? ये जो एपीसी बुलाएगी उसमें क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। आगे चल रहे हैं। उसके बाद जो हालात में, उसके बाद आपको नहीं समझ आती है कि दोबारा एपीसी होना चाहिए था कुछ सारी। ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया आपका पॉइंट। शौकत साहब, हारून रशीद साहब, चीफ जस्टिस साहब रुखसत हो रहे हैं, आपके ख्याल में हुकूमत ये भी खुश होगी, ऑपोजिशन तो शायद खुश हो ही हो, हुकूमत भी खुश होगी, या आपको लगता है कि नहीं अब वही सिस्टम चलेगा जुडिशरी का जो पहले चलता आ रहा है, नए चीफ जस्टिस पुराने के तसलसल होंगे और इस तरह ही फैसले होंगे एक्टिविज्म से? जी, खुश तो यकीनन होगी, उनका रवैया ज्यादा सख्त रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म ज्यादा रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस जो स्पेस गेन कर लेते हैं वो छोड़ते नहीं हैं। अदालतें असर्ट करती रहेंगी, स्टाइल बदलेगा और उम्मीद है कि कुछ बेहतरी आएगी सूरत हाल में। लेकिन ये कि मनमानी करने की तो अदालत इजाजत नहीं देगी।
اور بہت سے فیصلے انہوں نے درست بھی کیے ہیں. زیادہ ان کے رویے میں جو سختی تھی وہ شاید نئے چیف جسٹس میں نہیں ہوگی. بالکل صحیح. میاں جاوید صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, خوشی ہو رہی ہے یا آپ کو, یا آپ بڑے غمزدہ ہیں کہ اتنے چیف جسٹس اتنے امپورٹنٹ جو تھے, ان کے اتنا کنٹریبیوشن ہے جوڈیشری میں, وہ اب جا رہے 11 تاریخ, کوئی خوشی ہو رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عدلیہ کی بحالی کے لیے ہم نے جو جدوجہد کی, اور اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں تو کسی کو یہ نہ خوشی ہے نہ غمی ہے. ایک انہوں نے اپنی ٹرم پوری کی, اس کے بعد جا رہے ہیں جو سکون کا سانس لیا آپ نے؟ نہیں سکون کا یا پرائم منسٹر کو بلا لیا, مسنگ پرسنز پہ آپ لوگوں نے ناطقہ بند کیا ہوا ہے, وہی کورٹ نے کام اپنا کرنا ہے, یہ ہوں یا ان کی جگہ کوئی اور ہو, ہر ایک کو عدلیہ کا احترام کرنا ہوگا. جو آپ نے اصل جو پہلا آپ کا موضوع تھا, میں 2 جملے اس کے لیے ضرور کروں گا کہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں, کیا ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں, پاکستان اندرونی طور پر جس دہشت گردی کا شکار ہے, کراچی کے حالات ہیں, خیبر پختونخوا کے, بلوچستان کے, کیا ہم متمل ہیں کہ ڈرون بھی دیں, گرائیں, دھرنے بھی دیں اور ایک دوسرے کو غدار بھی کہیں؟ خدا کے لیے پاکستان کے ادارے سیاسی جماعتیں ایک پیج پر شوکت صاحب ویسے کنسیڈر کر لیجیے گا پاکستان کے حالات میں کیا دھرنے وغیرہ بھی پالیسی ٹھیک رہے گی, کب تک رہے گی؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے جو میاں صاحب نے آپ کے لیے چھوڑ دیا, میاں جاوید لطیف صاحب نے. جی شوکت صاحب. ایک میرا خیال عمران خان صاحب کو دھرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم دیکھیے تو احتجاج بھی نہ کریں. ٹھیک ہے, رؤف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اور ان کے ویل وشرز کو ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ اس سے پہلے جماعت اسلامی کے پاس بہت بڑی اسٹریٹ پاور رہی ہے, لیکن وہ کبھی بھی میرا الیکشن جیت نہیں سکی. ریٹ سوسائٹی نے پہلی دفعہ وقت ختم ہو گیا جی, وقت ختم. آج کے پروگرام تھا ویورز, بس.